Good evening. I am Anil Agarwal, former Chief Manager, Punjab National Bank. The candidates from West Bengal, Odisha, and some other states where lockdown is still continuing are putting comments or sending messages. Sir, what will happen to us due to lockdown? How we will reach our venue and appear in SBI Junior Associate exam? So my advice to these candidates is you continue your preparation. Things may change in next 8-10 days. Okay. And last time also there was apprehensions that how we will reach the venue. Candidates managed to reach the venue and they appeared in the examination. So if distance is manageable and then your admit card itself will act as a curfew pass. Even if curfew is imposed in your area, still you will be allowed to reach your venue. In some states, public transport is running at 50% capacity. Then you can reach because all the people are not traveling on that. But having unnecessary worry what is going to happen in 8 to 10 days from now will only hamper your preparation. My advice is you do your bit and then wait for things to settle. And how the things will pan out in next few days, you will come to know about these things by certain agencies. So my advice is you continue your focus on study. Don't mix up the case of Manipur or Ladakh or special drive of Ladakh and Leh with lockdown situation. These exams are put in abeyance by State Bank of India not on account of lockdown. These are some other issues which they have not disclosed and we are not aware what is the real reason for keeping these vacancies in abeyance. Some people say language is the issue. Like in Ladakh, there is some tussle going on whether that language should be taken or not. There may be some other issue in Manipur. So what are these issues? Because these are unauthenticated information. I don't cover any unauthentic thing on my channel. As far as State Bank of India is concerned, they have not disclosed the reason. They have kept it in abeyance. So this is unfortunate for the candidates, those who have applied for those posts. But don't try to unnecessarily take it forward that this is going to happen for other states also. Because other states, if lockdown is the issue, then your admit card will act as a curfew pass. You can travel. And if public transport is not available, try to use your personal vehicle, motorcycle, or take lift from your friend, or make some alternate arrangements. Because in such a large examination, in such a large country, you will never find a situation where everything is conducive to conduct the exam. When government feels or the examination agency feels this is the right time to conduct the exam, they will go ahead with the exam. So exam is going to happen. As you must have seen, the railway has also announced the dates. SSC also announced the dates. So examination season is on. We should focus on our studies. This is my advice. Some people are saying, sir, make a video, raise our voice. One thing I am very clear in my mind, that even if we make any video on any issue, it is not going to change the mindset of people, those have to conduct the examination. Best thing is we should try to find our means, how we can adjust to this emerging scenario, how we can prepare, how we can reach the destination, and how we can give the examination. That is the best solution. Certain people may give a wrong notion that by making a video something can be done or some exams can be postponed. It is not so. Yes, I am making this video just to
tell you what are the options before you, and that's why it is called right advice at right time. I always give you practical advice, the things that is going to happen, and the authentic information. So God bless you all. अब यही बातें हम हिंदी में करेंगे. जो कैंडिडेट उड़ीसा से बैठ रहे हैं, वेस्ट बंगाल से बैठ रहे हैं, या कुछ उन स्टेट से बैठ रहे हैं जहाँ लॉकडाउन लगा हुआ है, उनकी काफ़ी चिंता है कि हम एग्जामिनेशन हॉल पे कैसे पहुंचेंगे, क्या हमारे यहाँ एग्ज़ाम होगा कि नहीं होगा. पहली चीज़ ये है कि एग्ज़ाम होगा, क्योंकि जो मणिपुर और लद्दाख और लेह और लद्दाख का नोटिफिकेशन आया है, उससे कुछ लोगों के मन में भ्रांति बैठ गई है. वहाँ इशू लॉकडाउन नहीं है जिसकी वजह से वो पुट इन अबेयंस है, वो कुछ और इश्यूज हैं जो स्टेट बैंक ने डिस्क्लोज नहीं किए. कुछ लोग कहते हैं लैंग्वेज का इशू है, कुछ लोग कुछ और कहते हैं, पर क्योंकि ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन नहीं है तो हम अपने चैनल पे कैरी नहीं करते हैं ऐसी न्यूज़ को. जब तक कोई ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगी, हम नहीं कह सकते क्या कारण है कि उन्होंने कैप्टन अबेयंस रखा है. जहाँ तक अदर स्टेट्स का सवाल है, वहाँ एग्ज़ाम होगा, और आपने देखा होगा आज एसएससी ने भी डेट्स अनाउंस कर दी है, रेलवेज़ ने भी डेट्स अनाउंस कर दिया, तो जुलाई में एग्ज़ाम्स होंगे. हमें इन सिचुएशन में कैसे एग्ज़ाम देना है ये हमें सोचना है. जिन लोगों का सेंटर मैनेजेबल डिस्टेंस पे है, अगर वो पर्सनल व्हीकल से जा सकते हैं तो उनको जाना चाहिए, किसी दोस्त से लिफ्ट लेनी है तो लेनी चाहिए. मीन्स जो भी आप प्रयास कर सकते हैं सेंटर तक पहुंचने के, आपको करना चाहिए. कुछ लोगों के मन में डर है कि लॉकडाउन लगा हुआ है, कर्फ्यू लगा हुआ है, कैसे पहुंचेंगे. जो आपका एडमिट कार्ड होता है वही कर्फ्यू पास होता है, तो कर्फ्यू में आप मूव कर पाएंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है. मेन है आपके पास ट्रांसपोर्टेशन का अरेंजमेंट, वो आपको अपने साधनों से करना होगा, क्योंकि जितनी भी एजेंसीज होती हैं जो भी एग्ज़ाम कराते हैं, वो मेजॉरिटी देखते हैं कि मेजॉरिटी लोग क्या एग्ज़ाम में बैठ सकते हैं. तो यदि अधिकांश लोग एग्जामिनेशन सेंटर तक पहुंच सकते हैं और एग्ज़ाम दे सकते हैं, तो केवल कुछ कैंडिडेट की वजह से उनके डिसीजन डेफर नहीं होंगे. ये हमें मान के चलना है. कुछ लोगों का डिमांड होती है कि सर आप हमारी आवाज़ उठाइए, एक वीडियो बनाइए, उसमें ऐसे करिए. मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि किसी एक पर्टिकुलर वीडियो बनाने से इन एजेंसीज की कोई डिसीजन चेंज नहीं होती हैं. फिर भी आप कहते हैं हम बात आपकी रखते हैं, मगर आप ये मान के चलो कि जो अथॉरिटीज़ ने फैसला कर लिया है वो लागू होगा. हमें उसमें ये देखना चाहिए कि हम उसमें कैसे पार्टिसिपेट कर सकते हैं, हमें उसके अंदर क्या अरेंजमेंट करें कि हम सेंटर तक पहुंच सकें, हम कैसे पढ़ाई करें कि हम एग्ज़ाम पास कर सकें. ये चीज़ें हमें सोचनी चाहिए, ना कि हम इस चीज़ में पड़ जाएं कि ये पोस्टपोन कैसे होगा. अगर उन्होंने डेट तय की है, जो भी उनका डिसीजन है, एडमिनिस्ट्रेशन से बात करके जो भी डिसीजंस लिए हैं उन्होंने, वो उसको लागू करने की कोशिश करेंगे. लास्ट ईयर भी आरआरबी के एग्ज़ाम से पहले कुछ लोग तरह तरह की बातें कर रहे थे कि ये पोस्टपोन हो जाएगा, हम पोस्टपोन करवा देंगे, हम ये कैंपेन चला लेंगे. उन सब से लोगों को नुकसान हुआ. शुरू से मैं लास्ट ईयर भी आपको चैनल में बताता गया कि जो एजेंसीज हैं उनका हमेशा प्रयास होता है कि एग्ज़ाम हो जाए, क्योंकि एक के बाद एक कंपटीशन लाइंड अप है. तो अगर जरा सा भी उनको लगता है कि एग्ज़ाम हम करवा सकते हैं तो वो एग्ज़ाम करवाते हैं. ये आप मान के चलिए, क्योंकि अगर अभी से वो एग्ज़ाम कराएंगे, आप देखेंगे स्टेट बैंक के पीछे अब उनको मेन भी कराना है 31 तारीख को, उसके बाद 1 अगस्त से आरआरबी को भी अपने एग्ज़ाम कराने हैं. और स्टेट बैंक में तो उन्होंने सुविधा भी दी है कि आप अपने घर के पास का सेंटर चूज़ कर सकते हो, तो उसमें तो उस स्टेशन पे जाने वाली बात भी नहीं. जैसे आरआरबी में तो ये भी एक दिक्कत आती है कि जिस स्टेट से अप्लाई किया है वहीं के सेंटर्स होते हैं. इसमें तो आपने अप्लाई किसी भी स्टेट से किया है, सेंटर उन्होंने आपको अपने स्टेट का दिया है और नियर बाय कोशिश की है अकोमोडेट करने की. कुछ का हो सकता है डिस्टेंस ज़्यादा भी हो, पर कैसे उसको ट्रैवल करना है, कैसे मैनेज करना है, एक रात पहले पहुंचना है, एक दिन पहले पहुंचना है, वो आपको करना पड़ेगा. मुझे कोई ऐसा आसार नहीं लग रहा कि पोस्टपोन होगा. ठीक है, क्योंकि ये सारा उन्होंने बड़ा विचार विमर्श करके ही डेटें डिसाइड की होंगी
और SBI ने अगर डिसाइड किया है तो वो कोशिश करेंगे कि ये एग्ज़ाम ज़रूर पे ज़रूर हो। आप अपना रास्ता देखिए कैसे आप एग्ज़ाम में अपीयर हो सकते हैं। गॉड ब्लेस यू ऑल।